Jitendra Kumar Vijay. Sir is the Center for Rural Development and IIT Delhi National Coordinator for Unnat Bharat Abhiyan. I call on Sir to please present his scientific lecture on the scientific utilization through research augmentation prime products from Indian cow. We welcome you, sir. In today's speaker session, we were all when that how the science and philosophy of Indian knowledge system existed, and in the present paradigm of development, we are not following that. And the present science is not reaching out to the system which existed before even 5,000 years ago. मैं जो बात करूंगा वो इन सबसे दूर है, वो सिंपल आज की दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं जो चीज पढ़ता हूँ वो गांव की तरफ से आती है कि there is a center called Center for Rural Development and Technology in IIT Delhi, and for last few years we were working on that. When India became independent in 47, Gandhiji was mainly the behind person who gave his sacrifice that how India can become independent, but at the same time he told कि भाई खाली आजादी हमारी सफिशिएंट नहीं होने वाली है देश में, हमको किस लेवल पे जाना है वो है ग्राम स्वराज, राम राज्य. But we did not follow what he preached and what he was having the philosophy of Indian freedom struggle, Indian freedom movement. What we followed was the new physical world which has arrived after that. तो उसमें जो ग्राम स्वराज की जो उनकी कल्पना थी और जो राम राज्य की कल्पना थी, हमने बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं किया और हमने नए शहर बसा दिए, हमने नई टेक्नोलॉजी लिया है, हम नई दुनिया बसा गए. एंड व्हाट वी फॉलोड इज वी लुक टुवर्ड्स द वेस्ट. कि पिछले 200 सालों में आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड व्हाट हैज हैपेंड, आवर माइंड, आवर एजुकेशन सिस्टम, आवर फिलोसॉफी were mainly centered towards paradigm of development which West has created. And ultimately what happened, the development which has followed the Western philosophy has given rise to the present context of climate change. जो हमारी जमीन खराब हो गई, हमारा पानी खराब हो गया, हमारा हवा खराब हो गया, हमारा मेंटल बैलेंस खराब हो गया, हमारी हेल्थ खराब हो गई. तो मुझे लगता है कि ना टाइम हैज कम. My two earlier people have also mentioned that now we have to look towards a different kind of paradigm of development, and only India can give that. Indian philosophy and culture can only give that कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः. If everyone has to be happy in the world, what we have to do? So that's why we are fortunate enough in this present paradigm कि 1 दिसंबर से हमको G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई है, and we can rope in what kind of development paradigm we can pursue in 21st century. Now, whether it's a US or Europe or Russia or China, whatever you can say, उनको लगता है कि देश को अगर सही दिशा में ले जाना है, दुनिया को अगर सही दिशा में ले जाना है, क्लाइमेट चेंज को हमको खत्म करना है. यूनाइटेड नेशंस भी यही कह रहा है, we have to have a deeper understanding of our physical world, move towards spirituality in which we can envisage that development paradigm which we have to follow. तो उसमें छोटी सी मैं 5, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, तो हम लोग जो कुछ काम कर रहे थे पहले, तो प्रोफेसर सुरेश भल्ला ने कहा कि आप पंचगव्य पे क्योंकि थोड़ा बहुत एसोसिएटेड हैं. मैंने काम तो नहीं किया है, पर गाय पे थोड़ा सा बायोगैस में मैं काम करता हूँ. तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो थोड़ा बहुत समझता हूँ उसको आप लोगों के सामने शेयर करूँ. मुझे याद आ रहा है कि 2002 में मैं जब IIT दिल्ली में ज्वाइन किया, मैं एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आके यहाँ पे, तो हमने सितंबर 2002 में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई थी, पंचगव्य एवं गो आधारित अर्थव्यवस्था. तो पूरे देश भर की गौशालाएं को हमने आमंत्रित किया, वो क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसको शोकेस भी, एग्जीबिशन भी रखा पड़ा. उसमें 2000 से ज्यादा लोग आए थे भारत सरकार, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, तो उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे 8-10 वो भी लोग आए, राजनाथ सिंह जी हों, मनमोहन
जोशी जी हों, हमारे उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन जी, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो पहले अभी कुछ टाइम पहले तक हेल्थ मिनिस्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, और मैं उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था। जब हमने 2002 में ये कॉन्फ्रेंस की थी, उसका नाम था पंचगव्य एवं गो आधारित अर्थव्यवस्था। तो अभी जब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे करीब 2018 16 15 में, तो राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई हमारी। तो बोला कि यार हम लोग पंचगव्य पे कुछ कर रहे थे, क्यों नहीं, हम मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हूँ, आप लोग कुछ करिए। तो देन वी ऑर्गेनाइज ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इन आईआईटी दिल्ली इन दिसंबर 2016। 2015 में जब वो उसका नाम रखा हमने साइंटिफिक वैलिडेशन एंड रिसर्च ऑन पंचगव्य, और उसमें मंत्री जी भी आए थे। पूरे देश भर में जो गाय आधारित रिसर्च करने वाले लोग थे, जो गौशालाएं थी, उन लोगों को हमने बुलाया। आईआईटी, एनआईटी, डीआरडीओ, सभी सीएसआईआर, सभी के साइंटिस्ट भी थे, क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा कि हमको इसका एक प्रोग्राम बनाना चाहिए और उसको हमको साइंटिफिकली वैलिडेट करना चाहिए, क्योंकि लोग बाग तो उसको यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनली, चरक संहिता से लेके आयुर्वेद में, और दूसरे लोग फिजिकली उसको यूज करते हैं, चाहे वो गौमूत्र हो, चाहे गाय का गोबर हो, चाहे दूध हो, दही हो। तो और गांधी जी के मॉडल पे वो बेहतर की काउ गैस इकोनॉमी की उन्होंने बात की थी, भाई देश आजाद होगा तो काउ गैस इकोनॉमी से ही हम राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो अभी क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि पूरी दुनिया में नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन एनर्जी सिस्टम, एंड ग्रीन एनर्जी मींस लोकलाइज्ड एनर्जी, व्हाटएवर लोकल रिसोर्सेज यू आर हैविंग, animal resource or human resource or agricultural residue, we have to utilize it for our energy applications, food applications and other things. तो ये जो प्रोग्राम बना सूत्रा पे, तो इसमें 5 थीमेटिक एरिया हमने रखे कि व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडिजिनस काउ, देसी गाय क्यों होनी चाहिए, जर्सी और होल्स्टीन क्यों नहीं होनी चाहिए, जिसपे कि हमको काम करने की जरूरत है। एप्लीकेशन ऑफ पंचगव्य इन एग्रीकल्चर, जो गोबर है, गौमूत्र है, उसको एग्रीकल्चर में क्या क्या हम कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पंचगव्य इन फूड एंड न्यूट्रिशन, हमको जो दूध है, दही है, जो घी है, उसका जो फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या क्या हम उपयोग कर सकते हैं पंचगव्य का। एप्लीकेशन ऑफ पंचगव्य इन मेडिसिन हेल्थ, कई गौमूत्र हो, चाहे वो कैंसर का ट्रीटमेंट हो, चाहे ब्रेन एंसेफ्लाइटिस हो, उसमें लोग आयुर्वेद सिद्धांत को और पंचगव्य को यूज कर रहे हैं, तो उनका भी हमको साइंटिफिक वैलिडेशन करने की जरूरत है। कैंसर में तो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ उसमें। एप्लीकेशन ऑफ पंचगव्य एनर्जी यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक में आजकल बहुत लोग यूज कर रहे हैं उसको। तो एट द टाइम वी क्रिएटेड दिस 5 वर्टिकल स्वरूपा प्रोग्राम, and government is accepted it, Ministry of Science and Technology has accepted it, and involve all the related ministries, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, चाहे वो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, आईसीएमआर हो, और क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर भी थे तो आईसीएमआर को भी उन्होंने रोकन किया। एंड देन ऑल came forward and said that this should be scientifically proved and we have to generate data. तो फिर उसमें आईआईटी दिल्ली को नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया और सारी एक्टिविटी शुरू हुआ। अभी क्योंकि टाइम नहीं है, तो हमने इसका भी आज गांव में गाय आधारित व्यवस्था पे काम होना चाहिए, और पूरे देश भर में गौशालाएं हैं, जो गाय है वो उसमें फिलोसफी पे हम डेवलपमेंट करेंगे, तो गांव के लोग फिर गांव छोड़ के शहर नहीं आएंगे, गांव में इनकम भी जनरेट होगी, वहां के काम भी होंगे नेक्स्ट। और उसमें क्या क्या साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए, वैलिडेशन होना चाहिए, चाहे वो आईसीएमआर हो, चाहे वो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, चाहे वो आईसीआर का सिस्टम हो, चाहे हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हो। तो कुछ हमने आइडेंटिफाई किया क्या क्या होना चाहिए। तो हर टॉप वर्टिकल से रिलेटेड कुछ कुछ हमने डिसाइड किया कि क्या क्या होना चाहिए। जल्दी जल्दी से दिखा दीजिए। एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए, फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या क्या रिसर्च गाय के आधार पर होना चाहिए, हेल्थ के लिए मेडिसिन के लिए क्या क्या रिसर्च होना चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में, एनर्जी में, साइंटिफिक जो कॉस्मेटिक्स हैं, और जो है एयर कंडीशनर है, सेव लोशन है, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, उनमें भी किस किस तरह से काम होना चाहिए, उसका रिसर्च की जरूरत है। तो जो भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सीएसआईआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एमएनआरई, आईसीआर, ऑल दीज मिनिस्ट्रीज केम फॉरवर्ड
तो हम भी सपोर्ट करेंगे इसको। और आईआईटी दिल्ली में एक नेशनल सेंटर टाइप का एस्टेब्लिशमेंट करने का प्रपोजल उसमें इसमें हम क्या क्या निकाल पाएंगे, तो वो कुछ बातें उस टाइम डिसाइड हुई थी, अभी बात करने का टाइम नहीं है। तो उसमें हमने ये निकला कि भाई हाँ, कम से कम 25 ऐसे रूरल स्टार्टअप एंटरप्राइजेज जिनको होने चाहिए जो इस पे काम करेंगे। 50 प्रोडक्ट ऐसे डेवलप होने चाहिए जो कि लोगों तक पहुंच हो, जिसपे साइंटिफिकली वैलिडेटेड हो, और उसके कोई भी किसी को यूज करना है तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। Consumer value chain to link producer and consumers, branding and marketing involving stakeholders, and review and recommend for future कि हाँ भाई इसमें और हमको किस तरह से आगे बढ़ना है next। तो मैं दो तीन छोटे छोटे वीडियो हैं जो कि आईआईटी दिल्ली, क्योंकि मैं बायोगैस पे काम करता हूँ, तो बायोगैस का उपयोग कैसे गांव में गोबर का और उसका हम कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है गौशाला का, जो कि 2009 में हमने ये सेटअप किया था यार। तो दिस इज ए माधव गोविंद गौशाला इन भीलवाड़ा ऑफ राजस्थान। उसमें लगभग 500 गोवंश है, गाय हैं, देसी गाय हैं सभी। तो इस गाय के जो गोबर से है, उससे वहां तीन छोटे छोटे बायोगैस प्लांट थे, टोटल 110 क्यूबिक मीटर पर डे गैस प्रोडक्शन कैपेसिटी का। तो आप देखिए कि वहां पे जो 20 लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जो गाय के लिए सेवा देते हैं, जो वहां पे काम करने वाले हैं, उनके लिए जो रसोई का गैस है, एलपीजी की जरूरत नहीं है, बायोगैस से वो खाना बनाते हैं, पूरा फैमिली का कुकिंग उसकी होता है। फिर उसके अलावा वहां पे बिजली उन्होंने कनेक्शन नहीं लिया गौशाला में, बिजली भी जो पावर है वो 20 किलोवाट कैपेसिटी का बायोगैस जनरेटर उन्होंने एस्टेब्लिश किया। जो खाद निकलता है उसका एक पंप लगा रखा है, और टैंकर में सीधा भर देते हैं और वो फार्मर ले जाते हैं एडवांस पेमेंट करके। ये 100% बायोगैस जनरेटेड एक बिजली बनाने वाला जनरेटर है। उस टाइम कोई नहीं थे इंडिया में, तो लगाया उन्होंने 100% वाला। फिर ये वाटर स्कीमिंग सिस्टम जो टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली डेवलप की, हमने उसको डेमो के लिए वहां लगाया, और वो बायोगैस को प्योरीफाई करते हैं, उसको बायो सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस में होती है उसको रिमूव कर देते हैं। फिर जो प्योरीफाई गैस होती है उसको यूजिंग हाई प्रेशर कंप्रेसर वी कैन फिल इट, और वहां पे एक डिस्पेंसिंग सिस्टम बना है व्हीकल में डिस्पेंस करने के लिए भी छोटा। जनरली सीएनजी डिस्पेंसिंग में 1 करोड़ रुपए लगता है, 2 करोड़ रुपए लगता है, हमने 1 लाख रुपए में वो सिस्टम बनाया, अभी दिखाएंगे आपको। ये तो प्योरिफिकेशन यूनिट है जो कि H2S को कार्बन डाइऑक्साइड से रिमूव कर देती है। ये हाई प्रेशर कंप्रेसर, छोटा कंप्रेसर है जो प्योरिफिकेशन में काम आ रहा है। एक इसके ये हाई प्रेशर कंप्रेसर उस टाइम 150 बार तक हम कंप्रेस कर सकते थे, उसके ज्यादा का प्रोटोकॉल अलाउड नहीं था इंडिया में, 2009 की बात बता रहा हूँ। इससे हम 150 तक वो सिलेंडर भरते थे सीएनजी वाला। और उस टाइम भीलवाड़ा राजस्थान में सीएनजी गाड़ी व्हीकल नहीं होता था, तो दिल्ली से हमने भेजा व्हीकल, 3 व्हीलर। आप देखिए टू टू सिलेंडर कास्केट का एक फिलिंग सिस्टम हमने बनाया, ये 1 लाख रुपए में बना था उस टाइम। जनरली जो मार्केट कॉस्ट था वो 1 करोड़ रुपया सीएनजी फिलिंग वाला होता था दिल्ली में। ये देखिए 2 सिलेंडर से, इसमें 250 बार तक हम बायोगैस प्योरीफाइड बायोगैस भर देते थे, इसी से 3 व्हीलर करता था। तो देखिए गांव में सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, खाना बनाने के लिए एलपीजी, एलपीजी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की हमको जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, वहां कोई इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरते। और फिर उसके बाद जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट करने, दूध और गाय के प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 व्हीलर, वो भी ना डीजल की जरूरत ना पेट्रोल की जरूरत, बायोगैस से कर रहे हैं। तो लाइक वाइज वी कैन डेवलप ए सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिस्टम इन विलेजेस, so that in the present paradigm of development we should not emit greenhouse gas अभी। और हम जो दुनिया बात कर रही है कि हमको क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अमेरिका में, सॉरी कनाडा में टेम्परेचर 49 जा रहा है, यूरोप में बिल्कुल ड्रॉट हो रहा है, टेम्परेचर भी वहां भी 37-40 तक जा रहा था। तो we have to now minimize greenhouse emissions, or we have to make use of all the resources which are available in our villages, so that village people should not migrate from rural areas to urban areas. So that is the next एक छोटा सा और वीडियो है, अगर टाइम हो तो दिखाई, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये भी 2-3 मिनट के ही। हाँ चलिए, ये कि लामा कांगड़ी गांव है पंजाब में, वहां पे उन्होंने क्या किया कि उनके पास जो गोबर होता है उसको कलेक्ट करने के लिए स्पेशल ट्रॉली डिजाइन की उन्होंने। वहाँ कोऑपरेटिव सिस्टम है, और कौन कितना गोबर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका भी उन्होंने वेइंग मशीन लगा दिया, उसको मोबाइल ऐप बना दिए। तो कौन कितना गोबर रोज कंट्रीब्यूट कर रहा है बायोगैस प्लांट के लिए, उसका मेजरमेंट वो जब लाके अपना ट्रैक्टर ट्रॉली पे रखता है, उसको वेट आ जाता है कितना उसने कंट्रीब्यूट किया, और रजिस्टर में एंट्री हो जाता है। और और ट्रॉली ऐसी बनाई कि वो जब बायोगैस प्लांट पे जाती है ट्रॉली, ऑटोमेटिकली गोबर नीचे गिर जाता है पूरे इसमें ट्रॉली में से, और बायोगैस प्लांट में चला जाता है। So they are collecting cow dung
स्पेशली डिजाइन ट्रॉली है इनका लोकल लोगों के द्वारा। और रोज मेजरमेंट ले क्या हो रहा है? ये बायोगैस पे आगे पर गोबर नीचे गिर देखिए आप, ऑटोमेटिकली सारा गोबर नीचे गिर गया बायोगैस प्लांट में, फिर उसमें पानी डाल के वो मिक्स होता है, स्लरी बन के बायोगैस प्लांट में चली जाती है ऑटोमेटिकली थ्रू दिस ट्रोली ओनली, एंड द इट इज नाउ क्लीन एंड वट एवर बायोगैस इज क्लीनिंग। वो जो वहां पे पूरे गांव में 70 हाउस को पाइपलाइन से गैस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको, तो वो कोई एलपीजी यूज ही नहीं करते पूरे गांव के लोग। और उसके लिए मीटर भी लगा रखा है उन्होंने, कौन कितनी गैस कंज्यूम कर रहा है और कितना गोबर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अकॉर्डिंगली उसका जो स्लरी निकल रहा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पूरे गांव में ट्रेन कर में भर के ले जाते हैं और उनके घर पर डिस्ट्रीब्यूट कर, देखिए पाइपलाइन से वो टैंकर में भर दिया स्लरी, और स्लरी को ले जाके फील्ड में ले जाते हैं और छोड़ देते हैं पूरा। The whole village is run on the biogas. Yes, you see how slurry is distributed in the field. वो पूरे खेत में डालिया था और उसका कितना गोबर कंट्रीब्यूट किया उतनी स्लरी उसको मिलती है, एंड फॉर 7-8 years इट इज वर्किंग एक्सेलेंटली। वो सारे लोग लोकली लोग उसको रिपेयर कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, कोई किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं। यस यस इट इज वर्किंग वेल। एक छोटा सा वीडियो हो रहा है जो आईआईटी दिल्ली में हम लोग 200 करोड़ से किचन वेस्ट लेते हैं, उसको मैंने बायोगैस प्लांट में आईआईटी दिल्ली में डालते हैं, फिर बायोगैस जो बनती है उसको वेरीफाई करते हैं, और मेरी कार पिछले 11 साल से बायोगैस से चल रही है। दैट इज द ओनली कार इन द कंट्री व्हिच इज 100% रनिंग ऑन बायोगैस, एंड इट टेक्स मोर देन 1 लाख किलोमीटर रन ऑन बायोगैस। और जो मेस से भी हमारा हॉस्टल मेस से भी जो आता है कि वेस्ट का सब्जी के बंदर इनको क्रश करके बायोगैस प्लांट में डालते हैं। ये पल्वराइजर है जो कि किचन वेस्ट को और जो भी हमारे पील्स है सब्जियों के उनको डाल देता है, तो जो उसका क्रश बना उसको हमने बायोगैस प्लांट में डाल दिया। गोबर नहीं है क्योंकि हमारे पास दिल्ली में गोबर नहीं है, वी डोंट हैव एनी एनिमल्स अराउंड। पहले तो गोबर 20 साल पहले तो आता था, पर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में ऑल द cows or buffalo living in Delhi were outside, only they cannot remain inside the city। तो बाहर सारी चली गई, तो हमको गोबर चाहिए था, गोबर कहाँ से मंगाते, तो इसलिए हमने किचन वेस्ट, भाई घरों में जो आपका किचन वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करके हम लोग सारा बायोगैस प्लांट चला रहे हैं। ये आईआईटी दिल्ली का प्लांट है, और उसी से फिर मेरी जो गाड़ी है उसमें हम भरते हैं और चला रहे हैं। उनके लिए एमिशन बहुत अच्छे हैं, उसकी जो माइलेज है वो मेरी वेगन आर है, वो सीएनजी वाली गाड़ी, तो गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं है, खाली प्योरीफाइड है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि उसका जो माइलेज है 21 किलोमीटर पर किलोग्राम ऑफ बायोगैस। एनओएस कम है, CO2 कम है, CO कम है एमिशन में। और उसके जो वो ड्राइवर को कर आप पूछिए, मेरे जो ड्राइवर चलाता है इस गाड़ी को, उससे पूछेंगे कि गाड़ी कैसी चलती है शहर में, वो कहेगा पेट्रोल डीजल सीएनजी से चलने वाली जितनी भी गाड़ी है उससे बढ़िया चलती है शहर के अंदर, बहुत अच्छी बात। एक कि हम लोग एक उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, वो चला रहे हैं। इसमें हर कॉलेज अपने आसपास के 5 गांव को साथ में लेते हैं और अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को उन गांव के डेवलपमेंट में वो हेल्प करते हैं। इसका फायदा क्या हुआ हमको कि जब हमारे स्टूडेंट्स गांव में जाते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, तो जो लोगों में ट्रेडिशनल विजडम है, चाहे वो फार्मर्स हों, आर्टिजन हों, कोई नॉलेज वाले लोग हों, उनसे जब बात करते हैं तो समझ में आता है कि वो जो मॉडर्न एजुकेशन पढ़ रहे हैं वो तो किसी काम की नहीं है। रियल लाइफ चैलेंजेस वो एजुकेशन में पढ़ के और एग्जाम देने से आता नहीं है, तो दे आर लर्निंग द रियल लाइफ चैलेंजेस व्हेन दे आर गोइंग टू द विलेजेस। और आज की तारीख में 3400 कॉलेजेस पूरे इंडिया में, सारे आईआईटी, एनआईटी, आईसेट, एम्स, आईआईएम, दे आर वर्किंग विद इन उन्नत भारत अभियान। We are working with nearly 17,000 villages in the country, and Prime Minister recently said that you have to do more. In next 10 years, all the 7 lakh villages should be connected
with some higher education institute in the country. So our presently we are having about 3.5 crore 35 million students in higher education system. तो वो सारे बच्चे जब लोगों के साथ मिलेंगे, कम्युनिटी के साथ एंगेज होंगे, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो UGC has started a true credit course fostering social responsibility and community engagement. It is compulsory course for all undergraduates in the country. Due to Unnat Bharat Abhiyan, they university has started 100 hours rural internship program for all BTech degree holders. तो ये भी एक अच्छा है कि लोग अब सोसाइटी के साथ कनेक्ट होंगे, गांव पे जाएंगे. नेक्स्ट प्लीज. हाँ, तो ये दिस इज हम अकेले IIT दिल्ली ने शुरू किया था, हमने कंसेप्ट दिया था, आज ये पूरे देश भर में चल रहा है. अभी राष्ट्रपति जी ने ये 3 IIT दिल्ली का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था 3 सितंबर को, 3 सितंबर को. तो शी हैज रिलीज दिस बुकलेट ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ उन्नत भारत अभियान. और UGC और AICTE have started this true credit course and 100 hours rural internship which is in tune with National Education Policy 2020. ये राष्ट्रपति जी ने ये किताब हमारी रिलीज की IIT दिल्ली में, धर्मेंद्र प्रधान जी भी हैं साथ में. और प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, if we have to become a developed nation by next 25 years अमृत काल में, by 2047 we have to work together with all our villages and our higher education institutions. Thank you very much.